Hi friends, good morning. Welcome to this Pandey Sir English classes. Today I am with the topic transformation of the sentence. Transformation of the sentence is very important. That is for the student for class 11, 12 and for the student who is preparing for the competitive exam in India or abroad. Today, I will discuss the topic transformation. As you know that transformation is a sentence is to change it from one grammatical form to another without learning its sense. फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस को चेंज करने का एक माध्यम होता है जिसमें ग्रामर के फॉर्म का यूज़ किया जाता है, बट सेंटेंस के सेंस में किसी भी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं आती है. Thus, in transformation, we change the construction of sentence from one grammatical form to another without changing its meaning. There are a number of ways in which a given sentence can be transformed from one form to another. Friends, मैं यहाँ आज आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिस पॉइंट्स के तहत एक ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस का किस तरह से किया जाता है वो आप जानेंगे. मैंने करीब 12 पॉइंट्स को इसमें रखा है, तो 12 पॉइंट एक साथ डिस्कस करना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि 12 पॉइंट को जब हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे तो ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा. हाँ, तो अगर आप लोग मेरे वीडियो को लगातार देखते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को और आगे बढ़ाएं, शेयर करें. मेरे चैनल जो लोग देखते हैं, जो नए हैं, वो सब्सक्राइब करें. ये चैनल स्टूडेंट्स के लिए है और आई थिंक कि ये चैनल बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है और मैं इसे अब आगे बढ़ा रहा हूँ. The following are the main ways in which the transformation of sentence can be carried out. फर्स्ट, इंटरचेंज बिटवीन टू एंड सो. अभी मैं टू और सो ट्रांसफॉर्मेशन के जो वर्ड्स हैं, कंजक्शंस हैं, उसे मैं ले रहा हूं और इससे सेंटेंस को चेंज करना आपको बताऊंगा. इससे पहले मैं 12 पॉइंट्स के बारे में बताऊं. पॉइंट 1 जो कि यहां दिया गया है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कंटेनिंग टू एंड सो. Second, interchange between different forms of a conditional sentence. Third, interchange between different forms of sentences expressing concession or contrast. Fourth, interchange of degree of adjective. Fifth, interchange between two voices from active to passive and passive to active. Sixth, interchange between affirmative and negative sentences. 7. Interchange between different parts of a speech. 8. Interchange between exclamatory and assertive sentences. 9. Interchange between simple and complex sentences like noun, adjective, adverb clauses. 10. Interchange between simple and compound sentences. 11. Interchange between complex and compound sentences. Interchange between principal and subordinate clauses. 12th. Let us consider all these methods one by one in detail. First is transformation of sentences containing to or so. अब मैं यहाँ एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ. ये देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस कंटेनिंग टू और सो. यहाँ मैंने एक सेंटेंस लिया है, ही इज टू टायर्ड टू वॉक. ये जो सेंटेंस है वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता. ये सेंटेंस का जो अर्थ होता है वो निगेटिव. दिस सेंटेंस हैज द सेंस ऑफ निगेटिव, सो दिस सेंटेंस इज रिगार्डेड एज अ निगेटिव सेंटेंस. तो इसको जब हम चेंज करते हैं तो सो और दैट का यूज यहाँ किया जाएगा, लेकिन इसके मीनिंग में कोई बदलाव नहीं आएंगे. ही इज टू टायर्ड टू वॉक, वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता. इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा ही इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वॉक. अब सेकेंड सेंटेंस लेते हैं, ही इज टू क्लेवर टू बी डिसीव्ड. वह इतना चालाक है कि उसे धोखा नहीं दिया जा सकता. अब इसे चेंज करेंगे, ही इज सो क्लेवर दैट to be deceived. Yeah. Third sentence, this news is too good to be true. This news is too good that it cannot be true. Third sentence. Let me discuss some other sentences and the exercises of the
transformation should be given as it is. Transformation of the following sentences by changing to into so that और so that into to. अब ये देखिए ट्रांसफॉर्मेशन जो सेंटेंस का होता है इसमें कुछ इस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं कि टू को सो डैट में कैसे चेंज करेंगे, सेंटेंस जो टू से बना हो उसको सो डैट में कैसे चेंज करेंगे, या सेंटेंस जो कि सो डैट से बना हो, सो डैट से बना हो उसे टू के साथ किस तरह से चेंज करेंगे। मतलब चेंज करने के बाद भी दोनों सेंटेंस में कोई बदलाव नहीं आता है, सेंटेंस का मीनिंग एक ही होता है। तो अब हम लोग उसमें एक दो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ही इज सो फुलिश दैट ही कैन नॉट अंडरस्टैंड यू। ही इज सो फुलिश दैट ही कैन नॉट अंडरस्टैंड यू। अब इसको चेंज करना है, इसको क्या चीज में चेंज करेंगे, टू लगा के चेंज करना है। ही इज टू फुलिश दैट, ही इज टू फुलिश टू अंडरस्टैंड यू। यहाँ दैट ही कैन नॉट ये सब नहीं यूज होगा। ही इज टू फुलिश टू अंडरस्टैंड यू। ही इज सो स्मॉल दैट ही कैन नॉट गो अलोन। अब इसको चेंज करना है, ही इज टू स्मॉल टू गो अलोन। इस तरह से इसको चेंज करते हैं। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं जो कि कंडीशनल सेंटेंस से आता है। सेकेंड रूल देखते हैं, सेकेंड रूल जो कि कंडीशनल सेंटेंस से आता है। कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस आप जानते होंगे, जैसे कि हाइपोथेटिकल टाइप ऑफ सेंटेंस होता है, परिकल्पना, कल्पना इत्यादि उसमें किया जाता है। अब इसमें हम एक सेंटेंस लेंगे, ठीक है, जैसे कि अनलेस का यूज करना है। कंजक्शन जैसे रूल 1 में हम जैसे यूज ऑफ अनलेस, यूज ऑफ अनलेस, UNLESS, अनलेस का यूज करेंगे इसमें। जैसे एक हम एग्जांपल लेते हैं, इफ यू स्पीक ट्रूथ आई शैल पार्डन यू। इफ यू स्पीक ट्रूथ आई शैल पार्डन यू। How to change it? Unless you speak truth, I shall not pardon you। जब तक आप सत्य नहीं बोलते हैं तब तक मैं आपको माफ नहीं करूंगा। यदि आप सत्य नहीं बोलेंगे तो मैं आपको माफ नहीं करूंगा। इस तरह के वाक्य हैं। अब इसके बाद हम लोग एक सेंटेंस लेंगे जिसमें हम कनेक्टिव इन केस का यूज करेंगे। अब हम इसके नेक्स्ट नियम को लेते हैं, मान लीजिए रूल सेकेंड, ठीक है। अब इसमें बाय यूजिंग अ कंजक्शन, बाय यूजिंग कंजक्शनल फ्रेज, कंजक्शनल फ्रेज। अब हम कंजक्शनल फ्रेज का यूज किस तरह से करते हैं, तो ये एग्जाम्पल एक लिया जा रहा है। सेंटेंस आपका वही है, सेंटेंस आपका है इफ यू स्पीक ट्रूथ आई शैल पार्डन यू। इफ यू स्पीक ट्रूथ आई शैल पार्डन यू। सेंटेंस सेम है, मान लीजिए 1 है, इसको चेंज करना है। तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो मान के चलिए कि हम कंजक्शन जो है, कंजक्शन ले रहे हैं इन केस। कंजक्शन कौन सा ले रहे हैं, इन केस। तो इसको चेंज करने के लिए इन केस को पहले लिखेंगे। इन केस यू स्पीक ट्रूथ
इन केस यू स्पीक ट्रूथ आई शैल पार्डन यू। आई शैल पार्डन यू। अब हम रूल थर्ड लेते हैं, बाय यूजिंग पार्टिसिपल फ्रेज। बाय यूजिंग पार्टिसिपल फ्रेज। पार्टिसिपल फ्रेज। अब पार्टिसिपल तो आप जानते ही होंगे कि वर्ब में आईएनजी लगा हो, कमिंग, गोइंग, एक्सरसाइजिंग। अब पार्टिसिपल फ्रेज को लगाकर सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे, ये चीज बताया जा रहा है। क्वेश्चन आपका यही है, इफ यू स्पीक ट्रूथ आई शैल पार्डन यू। तो इसको इस तरह से चेंज करते हैं, सपोजिंग you speak truth, you speak the truth, speak the truth, supposing you speak the truth I shall pardon you। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है। इसमें अगर मान लीजिए हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में इसको चेंज करेंगे तो इसको किस तरह से चेंज किया गया जाएगा, तो इसमें ऐसे लिख सकते हैं, आई शैल पार्डन यू provided I shall pardon you provided you speak the truth। You speak the truth। अब हम इसको इस तरह से चेंज कर सकते हैं। अब फोर, देखिए ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और ये प्रोवाइडेड जो है पास्ट पार्टिसिपल का फॉर्म है। अब हम इसमें फोर्थ में आते हैं, इंपेरेटिव मूड में इसको कैसे चेंज करते हैं। इंपेरेटिव मूड, इंपेरेटिव मूड। इंपेरेटिव सेंटेंस जैसे आप जानते हैं ऑर्डर कमांड वगैरह आता है, जैसे गो देयर, स्टैंड अप, सेट अप, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये सब कमांड है। इसी तरह से इंपेरेटिव मूड में सेंटेंस को कैसे चेंज किया जाता है, क्वेश्चन आपका यही है, इफ यू स्पीक ट्रूथ आई शैल पार्डन यू। तो इसको चेंज करने के लिए हमें इंपेरेटिव मूड में इसको चेंज करना है, तो इसमें लिखेंगे, पहले इंपेरेटिव मूड को लिखेंगे, स्पीक द ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ एंड आई शैल पार्डन यू, एंड आई शैल पार्डन यू। स्पीक द ट्रूथ, सत्य बोलो और मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। मीनिंग वही है, इफ यू स्पीक ट्रूथ, यदि आप सत्य बोलते हैं तो मैं आपको माफी दे दूंगा या मैं आपको माफ कर दूंगा। और इंपेरेटिव मूड में इसको ऐसे बोलते हैं कि सत्य बोलो और मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। ये दोनों देखिए भाव एक ही है, पर सेंटेंस में कुछ फर्दर चेंज हुए हैं। अब हम एक रूल और लेते हैं, फिफ्थ, प्रीपोजिशनल फ्रेज से इसको कैसे चेंज किया जा सकता है, बाय यूजिंग प्रीपोजिशनल फ्रेज। बाय यूजिंग प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज के साथ हम इसको कैसे चेंज करेंगे वो चीज अभी आपको बताएंगे। जैसे देखिए सेंटेंस आपका यही है, इफ यू स्पीक ट्रूथ आई शैल पार्डन यू। तो इसमें प्रीपोजिशनल फ्रेज है बट फॉर योर स्पीकिंग, but for your speaking the truth I shall not pardon you। यहाँ ये बट फॉर का ये अर्थ होता है, जब तक आप सत्य नहीं बोलते हैं मैं आपको माफ नहीं करूंगा, मैं आपको माफी नहीं दे सकता। इस सेंटेंस का ये अर्थ होता है। अब हम लोग
इससे रिलेटेड बहुत से एक्सरसाइज को कर सकते हैं। जैसे मेरे पास इससे रिलेटेड बहुत से एक्सरसाइजेज हैं। आप अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं एक्सरसाइजेज को सेंड कर सकता हूं, जो कि आपके बैंकिंग वगैरह या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही पावरफुल रहेगा। अब हम लोग दूसरा एक पॉइंट लेते हैं, सेंटेंसेस शोइंग कंसेशन और कंट्रास्ट। तीसरा पॉइंट जो मैंने बताया था, कंसेशन और कंट्रास्ट। अब ये सेंटेंस में कंसेशन और कंट्रास्ट दोनों चीज को बताएगा। अब देखिए इसमें रूल 1, इसमें पहला रूल लेते हैं, तो बाय यूजिंग नॉट विथ स्टैंडिंग, नॉट विथ स्टैंडिंग एक क्लाउज है, नॉट विथ स्टैंडिंग एक क्लाउज होता है, उसके यूज के साथ हम आपको सेंटेंस बनाना बताएंगे। क्वेश्चन आपका रहेगा, दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट। क्वेश्चन क्या है, एक ही सेंटेंस हम ले रहे हैं, दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट। सेंटेंस एक ही ले रहे हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट notwithstanding that he is poor। यद्यपि वो गरीब है फिर भी वो ईमानदार है। तो यहाँ पे नॉट स्टैंडिंग फिट होता है। इस सेंटेंस में एक ही चीज ट्रांसफॉर्मेशन में ध्यान देना है कि किसी सेंटेंस में जब कोई हम कनेक्टिव्स लगाते हैं तो वो सेंटेंस में कहाँ फिट बैठेगा, इस चीज का ध्यान रखना है। तो नॉट विथ स्टैंडिंग पहले जो सेंटेंस का लास्ट है उसको पहले रखेंगे, ही इज ऑनेस्ट, उसके बाद नॉट विथ स्टैंडिंग क्लाउज लगाएंगे और उसके बाद दैट लगाएंगे, दैट ही इज पुअर। सेकेंड एग्जाम्पल हम सेकेंड रूल अब देखते हैं। सेकेंड रूल में हाउएवर, यूजिंग ऑफ, बाय यूजिंग हाउएवर, बाय यूजिंग हाउएवर, बाय यूजिंग हाउएवर। अब हाउएवर लगा के सेंटेंस को कैसे चेंज किया जाएगा। सेंटेंस आपका एक ही है, दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट। अब इसको चेंज करना है, हाउएवर पुअर ही इज, however poor he is, comma he is honest। देखिए यहाँ however, जबकि वो गरीब है फिर भी वो ईमानदार है, इसका ये मतलब हो गया। क्वेश्चन यही था, दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, तो however पुअर ही इज ऑनेस्ट, इसको इस तरह से चेंज कर दिए। अब हम तीसरे रूल्स को लेते हैं। इस तीसरे रूल में कंजक्शन का एक वर्ड लेते हैं, एज। वी विल टेक कंजक्शंस वर्ड एज। तो अब हम इसको चेंज करते हैं, पुअर एज ही इज, पुअर एज ही इज, कॉमा ही इज ऑनेस्ट। सेंटेंस का सेंस वही रहेगा कि यद्यपि वो गरीब है फिर भी ईमानदार है। अब रूल 4 लेते हैं, ये रूल है, यहाँ रूल 4 लेते हैं। रूल 4 में ऑल द टाइम फ्रेज लेते हैं, ऑल द टाइम। एक हम लोग फ्रेज लेते हैं, इसका है, ये फ्रेज है ऑल द टाइम। एट द सेम टाइम, सॉरी एट द सेम टाइम एक फ्रेज लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम चेंज करने का प्रयास करते हैं, ही इज पुअर, ही इज पुअर, ही इज पुअर के बाद सेमीकोलन डालेंगे, एट द सेम टाइम
एट द सेम टाइम ही इज ऑनेस्ट। देखिए यहाँ पे सेंटेंस यही है, दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट। अब यहाँ सेंटेंस को प्लेस कैसे करना है, ये जो फ्रेज है इसको प्लेस कैसे करेंगे। वह गरीब है, ही इज पुअर एट द सेम टाइम ही इज ऑनेस्ट। वह गरीब है और ईमानदार भी है, यानी गरीबी के समय में भी वो ऑनेस्ट है। इस सेंस से हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब हम लोग एक पार्टिसिपल फॉर्म को लेते हैं। किस चीज को ले रहे हैं, ये 5वां नंबर का वो है, पार्टिसिपल फॉर्म को लेते हैं। पार्टिसिपल, पार्टिसिपल जिसमें आप जानते हैं कि आईएनजी आता है। क्वेश्चन आपका सेम है, ऑल्दो, फिर से एक बार लिख दे रहा हूं, ऑल्दो या दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट। सेंटेंस आपका सेम है। अब पार्टिसिपल से इसको कैसे चेंज करेंगे। एडमिटिंग दैट ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट। एडमिटिंग दैट, admitting that he is poor, comma, he is honest. Admitting that he is poor, he is honest. एक और हम लोग फ्रेज लेते हैं। अक्सर फ्रेज वाले जो वर्ड्स होते हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में पूछे जाते हैं। तो एक फ्रेज अभी और ले रहे हैं। ये फ्रेज है फॉर ऑल दैट, फॉर ऑल दैट। अब हम इस फ्रेज से सेम इस सेंटेंस को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। ही इज पुअर, देखिए क्वेश्चन तो यही है, दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट। सॉल्व करेंगे, ही इज पुअर, ही इज पुअर के बाद सेमी कॉलन हो जाएगा, फॉर ऑल दैट ही इज ऑनेस्ट, फॉर ऑल दैट ही इज ऑनेस्ट। देखिए इसमें जो जितने जो ये साइन वगैरह होते हैं इसका एक अलग अलग यूज होता है, फुल स्टॉप, सेमी कॉलन, कॉमा, कॉलन, ये सभी चीज़ों का अलग अलग यूज होता है। तो यहाँ पे सेंटेंस ही इज पुअर, वह गरीब है, फॉर ऑल दैट, उसके बावजूद भी ईमानदार है, यानी इससे इसको कनेक्ट करने के लिए यहाँ सेमी कॉलन का यूज किया गया है। अब एक हम लोग 7वां रूल और लेते हैं। वी विल टेक नेक्स्ट रूल, एडवर्ब लेते हैं। एडवर्ब का एक वर्ड लेते हैं। एडवर्ब का एक वर्ड है इंडीड। एडवर्ब का वर्ड क्या है, इंडीड है। एडवर्ब के इंडीड वर्ड को, इंडीड वर्ड फॉलोड बाय द कंजक्शन दैट, बाय द कंजक्शन बट। इसमें इंडीड और बट दोनों का यूज होना चाहिए। क्वेश्चन यही है, ऑल्दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, तो सेंटेंस इसका होगा ही इज पुअर इंडीड बट ही इज ऑनेस्ट। अब यहाँ पे जो बताया गया है कि इंडीड फॉलोड किया जा रहा है किसके द्वारा, बट के द्वारा। इंडीड क्या है, इंडीड एडवर्ब है और इसको कंजक्शन बट के द्वारा फॉलो करवाया गया है। तो ही इज पुअर इंडीड बट ही इज ऑनेस्ट, वह गरीब है लेकिन फिर भी वो ईमानदार है। अब इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो भी बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं और इससे रिलेटेड बहुत से सेंटेंसेस होते हैं और इन सेंटेंसेस का यूज़ हम लोग इंग्लिश ग्रामर में करते हैं और आप इसके यूजेस को अच्छे से अच्छे बुक में, जैसे हाउ टू करेक्ट इंग्लिश और जिस इंस्टीट्यूट की बुक आती है, डीजीपी इंग्लिश कोर्स आता है, इंग्लिश इज इजी आता है, और सो मेनी ग्रामर्स के बुक होते हैं जिसके माध्यम से आप कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर सकते हैं। अब हम इसके एक और
तो रूल नंबर 4 को लेते हैं। रूल नंबर 4 को लेते हैं। इसमें क्या है, बाय चेंजिंग डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, बाय चेंजिंग डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। अब जैसा कि हम सब जानते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव 3 डिग्री होता है, 3 पोजीशन होता है। जैसे मान लीजिए कि एक वर्ड है गुड। गुड क्या है, एडजेक्टिव है, इसका कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा बेटर और सुपरलेटिव हो जाएगा बेस्ट। अब इसमें हमको ये ध्यान देना है कि कंपैरेटिव में मोस्टली देन का यूज होता है कंपेयर करने के लिए, और सुपरलेटिव में द का यूज होता है, क्योंकि सुपरलेटिव जो डिग्री होता है वो सबसे, सुपरलेटिव का मतलब सबसे अच्छा, कंपैरेटिव का मतलब इससे अच्छा, और सुपरलेटिव का मतलब हो गया सबसे अच्छा। तो अब हम लोग एक सेंटेंस इससे लेते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस है, नो अदर किंग in the history of India, India is as great as Ashok या अशोका। अब हम लोग इसको चेंज क्या चीज में करना है, ये पॉजिटिव डिग्री है आपका, ये पॉजिटिव डिग्री है। कैसे इसको मानेंगे पॉजिटिव डिग्री, क्योंकि ये ग्रेट है, ये ग्रेट जो वर्ड है पॉजिटिव है, पहला ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। अब हम इस पॉजिटिव डिग्री को किस चीज में चेंज करें, मान लीजिए पॉजिटिव डिग्री को हम लोग कंपैरेटिव में चेंज कर रहे हैं, तो पहले इसको सेम एज इट इज लिखेंगे। नो अदर किंग इन इंडिया, इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, is greater than अशोका। तो ये जो एक ग्रेटर है, देन है। मैंने इससे पहले बताया था कि कंपैरेटिव डिग्री में देन का यूज किया जा सकता है, या मैक्सिमम मोस्ट ऑफ केसेस में इसका यूज किया जा सकता है, लेकिन सीनियर देन नहीं होगा, सीनियर टू होता है। ठीक है, सीनियर या जूनियर के साथ टू का ही यूज हम लोग करते हैं। अब हम अगर इसे, ये हो गया आपका कंपैरेटिव डिग्री में चेंज। अगर हम इस सेम सेंटेंस को कहे कि इसको आप सुपरलेटिव डिग्री में चेंज कीजिए, तो इसको कैसे चेंज करेंगे, तो इसमें लिखेंगे अशोका इज द ग्रेटेस्ट किंग इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, king in the history of India. अशोका इज द ग्रेटेस्ट किंग इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब इस तरह से इसको चेंज किया गया। अब हम लोग इसमें एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। सम मेटल्स आर at least as heavy as iron। इसका मतलब हुआ कि कुछ मेटल्स उतने ही वेटफुल होते हैं जितना कि लोहा होता है। अब इसको हम, ये जो सेंटेंस है आपका, ये पॉजिटिव डिग्री में है, ये पॉजिटिव डिग्री में है। अब हम आपको कहेंगे कि इसको कंपैरेटिव डिग्री में आप चेंज करिए। इसको कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो दो तरीके से कर सकते हैं, आयरन
is not heavier than some other metals। ये कंपैरेटिव डिग्री में चेंज हो गया है। अब इसे एक और तरीके से चेंज कर सकते हैं। सम metals are not less heavy than iron। अब यहां देखिए हैवी, लेस हैवी देन, ये लेस जो है, लेस हैवी, ये चीज कंपैरेटिव डिग्री है। हैवियर, हैवी, हैवियर, ये चीज जो है कंपैरेटिव डिग्री है। इस हैवी में लेस लगा के इसको कंपैरेटिव डिग्री बना दिया गया। ये भी कंपैरेटिव डिग्री का एग्जांपल हो गया। अब हम इसे अगर सुपरलेटिव डिग्री में ले जाते हैं तो ये होगा आयरन इज नॉट द हैवीएस्ट, नॉट द हैवीएस्ट, देखिए यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है इसीलिए द हो गया, हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स, ऑफ ऑल मेटल्स। यहां हमने 4 पॉइंट्स को बताया है। फ्रेंड्स, here we have discussed interchange between to and so, interchange between different forms of conditional sentences, interchange between different forms of sentences, expresses, concessions और contrast, और लास्ट में इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। ये 4 पॉइंट्स को हमने यहाँ बताया है। तो इस वीडियो के अंत में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और आप अपना सुझाव हमें हमारे ईमेल के माध्यम से हमें भेज सकते हैं। मेरा ईमेल है shubh1682@gmail.com, और आप YouTube पे पांडे सर स्पोकन क्लास पर भी हमें देख सकते हैं। और इस वीडियो के अंत में मैं आपको अपना YouTube चैनल के बारे में विशेष मैं डिस्कस कर दूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय।